Okay, so what we are going to do is today time, speed, and distance, right? Now, this is also an important topic for these examinations. This is the good part of this chapter is that we have certain amount of limited formulas. By and large, the questions are formula based. Of course, there is some application of formulas as well. So we'll start with understanding of this concept of time, speed, and distance. Now, we know that speed is defined as the ratio between the distance and time. Basically, by definition, it is rate of change of position. Rate of change of position. What does it mean? It means that let's say there is some point, some body here. After some time, this point moves here, right? Now, with passage of time, there is a change of position of this point. Now, what will cause this change? That 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 thing that causes the change is what we call as a speed, and therefore we define it as a rate of change of position. So this can be in terms of formula, it can be speed is equal to distance upon time. From here I can say distance is equal to from here I can say distance is equal to speed into time, and I can also say time is equal to distance upon speed. Now you see that it may seem three different formulas, but essentially it is just one formula, right? So we are trying to reposition these values and creating different formulas. But we are expected to remember, अगर कोई टाइम पूछे तो हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड है. ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फिर टाइम की वैल्यू निकालेंगे, तो डायरेक्ट हमें समझ में आना चाहिए. So these are the three formulas from the same idea. Now from here we can also understand one more thing. Now if you keep the distance constant, right? So if you keep distance constant, what you observe that speed is inversely proportional to time. What does it mean? It means if the distance is fixed, as in let us say you have to travel from Hisar to Delhi, say for example. So the distance is fixed. Now if you travel at a faster speed, the time taken is less. If you travel at a slower speed, the time taken is more. Okay, so that is an inverse relation because here we are assuming that d is constant. Okay. Similarly, let us say s is constant, then I would say distance is directly proportional to time. If I say s is constant, that means for a fixed speed, let us say we have decided that we were only going to travel at 40 kilometers per hour. So the speed is fixed. Now, if you are traveling for a longer duration of time, you are covering more distance. And if you're traveling for a lesser duration of time, you are covering less distance, right? That is how you do that, distance is proportional to time. Similarly, if you keep, t constant, मान लेते हैं हमने यहाँ पे t constant कर दिया, then we can say distance is directly proportional to speed. That means if you are driving, let us say for only 2 hours, the 2 hours is fixed. Then if you are traveling for long with a higher speed, you will cover more distance, and if you're traveling with lower speed, you will cover less distance. So these are the relationships that we can really understand. So this is the most basic of all that this question is given, right? Using these examples, formulas, let me ask you this one simple question. Let's say I am traveling 4/5 of my normal speed, and therefore I am late by 5 minutes. What is the time in which I used to reach regularly? I am traveling at 5/4 of my normal speed and I reach 5 minutes early. What is the time in which I used to reach regularly? Isn't it logical? I mean, at least this is logical. If you're traveling at 4/5 of your normal speed, are you traveling at a faster pace or slower pace? Slower, because speed is less, so time will be more. How much more? 5 minutes. Now the question is, what is the normal duration of you reaching the destination? Try solving this.
हाँ जी प्रीत, बनी हुई कुछ बात? देखिए No, हाँ, sir. okay, now we can have a shortcut also, and also the method. Now the good, it is a good quality question in the sense neither you know the distance, nor you know the speed, nor you know the time. Still he's asking what is the actual time in which you travel. Now we know, for example, let us say we are traveling some distance d, and let us say we are traveling at a speed of s, and let us say the time taken is t. We know, हमें इतना समझ में आता है। कहने से हमें इस बात का पता है कि जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम है। Now, what is the speed? This is the normal distance with normal speed and not. Now, if you are traveling at slower speed, will the distance change? Just because you are traveling slowly, does it mean that the destination will move away or come forward? No. So distance remains same. What is the speed becoming? 4/5 is. What is the time? Now we know distance can be written as s into t. So s into t is equal to 4/5s into t plus 5. Please रखना, ध्यान रखना, t जो है वो 5 है, मिनट्स है। s से s कटेगा, you can cross multiply. 5t is equal to 4t plus 20. 5t minus 4t is equal to 20. ठीक है, इसका शॉर्टकट ये हो सकता था कि स्पीड जो है वो 4/5 है, तो टाइम इनवर्स लगेगा। स्पीड कितनी है? 4/5, ये स्पीड है, तो टाइम जो लगेगा 5/4 लगेगा, यानी नॉर्मल टाइम से 1/4 एक्स्ट्रा लग रहा है। 1/4 इज गिवन टू मी एज 5 मिनट्स, तो पूरा टाइम कितना हो जाएगा? 20 मिनट्स। किसी चीज का 1/4 5 मिनट है, तो पूरा टाइम कितना होगा? 20 मिनट्स। वो भी कर सकते हो, बट देन यू मे ऑल्सो डू दिस। आई वॉन्ट यू टू यूज दिस मेथड and solve the second question. Use the same logic. क्या आंसर आया? 5/21, 5/21। स्पीड कितनी है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, स्पीड इज 5/4s, टाइम t माइनस, एस टी इज इक्वल टू 5/4 इंटू टी माइनस 5। एस से एस कटेगा, 4t इज इक्वल टू 5t माइनस 25। तो 25 इज इक्वल टू 5t माइनस 4t, तो t इज इक्वल टू 25। ठीक, इसको ऐसे कर सकते थे, जो स्पीड है वो 5/4 है, 5/4 है, यानी टाइम कितना लगेगा? 4/5, यानी 1/5 कम लग रहा है। किसी भी चीज का 1/5 अगर 5 मिनट है, तो टोटल कितना होना चाहिए? 25 मिनट। इसका शॉर्टकट है। प्रीत, बन रही है कुछ बात? Yes, sir. ठीक, हाँ जी, समझ में आया? नहीं आया? बता कौन सा नहीं आया? ना, फिर से कर दिखा, क्या दिक्कत है? 5/स्पीड 5/4 है।
हाँ, तो टी की जगह क्या पुट करेगा, डी की जगह एस टी तो पुट करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ एस टी पुट कर दे, मान ले एस से एस कट जाएगा, 5t माइनस 25 इज इक्वल टू 4t आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक, आगे भी तो करना तो पड़ेगा आगे। ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो मिनट्स था, तो हमने मिनट्स में आंसर निकाल दिया। बट पीएचडी की एक खास बात है कि जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसके अंदर जो ना उसकी यूनिट्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो डिस्टेंस है, हमारा स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो डिस्टेंस है वो कैसे है, वो किलोमीटर में है, वो मीटर में है, वो यार्ड में है, फीट में है। ठीक है, किलोमीटर्स, मीटर्स, यार्ड, फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे मेरी किसमें यूनिट्स है, डिस्टेंस की। ऐसे ही टाइम की यूनिट क्या होती है, आवर, मिनट, सेकेंड, डेज, ईयर्स, ऐसे। अगर मैं इनका रेशियो ले लेता हूं, इनका रेशियो स्पीड है, इसका मतलब जो स्पीड है उसकी जो यूनिट है वो डिराइव्ड होगी। क्या क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे अपन किलोमीटर पर आवर यूनिट हो सकती है, किलोमीटर पर मिनट यूनिट हो सकती है, किलोमीटर पर सेकेंड यूनिट हो सकती है। समझ में आ रहा है? सो इट इज अ डिराइव्ड यूनिट, सो ऑल पॉसिबल यूनिट्स कैन बी फ्रेम्ड। ऑल्दो मोस्ट पॉपुलर यूनिट कौन सी है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसको हम kmph भी बोलते हैं। इसका मतलब इफ ए बॉडी इज ट्रेवलिंग 1 किलोमीटर इन 1 आवर, if a body is traveling 1 kilometer in 1 hour, we say the speed of the body is 1 kmph, right? So this is how we understand kilometer. दूसरा है, इसी का अगर हम कन्वर्ट करें, किलो का मतलब होता है 1000, तो किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर अपॉन आवर। एक आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये 2 5 जा 2 3 जा, ये मेरे पास आ जाएगा 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो सबसे पॉपुलर यूनिट हमारी क्या है, किलोमीटर पर आवर या मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही आएगी, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है और हमें इसका, ये काफी फ्रीक्वेंटली आती है और हमें इसका कन्वर्जन आना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन? जैसे अभी हमने निकाला कि 1 किलोमीटर पर 1 आवर इज 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 मीटर पर सेकेंड, कैन आई से इट इज 18/5 किलोमीटर पर आवर। So if you are given, let us say, 18 kilometer per hour. So this can be written as 18 into 1 kilometer per hour. Now this 1 kilometer per hour can be replaced by 5/18 meters per second, because we have seen 1 kilometer per hour can be replaced by 5/18. So this goes and you have 5 meters per second. So what is the learning? The learning is, if you have to convert kilometer per hour into meters per second, what do you do? Multiply. Multiply by what? Multiply by 5/18 meters per second. Similarly, there are certain standard results that we have to remember. 18 किलोमीटर पर आवर कितना बना मेरा, 5 मीटर्स पर सेकेंड। अगर इसका डबल करूंगा तो 36 किलोमीटर पर आवर कितना बन जाएगा, 10 मीटर्स पर सेकेंड। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, सो दिस बिकम्स 54 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा, 15 मीटर्स पर सेकेंड। इसको डबल करूंगा तो बनेगा 72 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा, 20 meters per second. So what do you see? Now these are some standard results that you are expected to remember, ताकि डायरेक्टली क्वेश्चन अपन आराम से सॉल्व कर सकें। उसी तरीके से अगर मुझे मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो मैं बोल सकता हूं डिवाइड करूंगा 5/18 से, और मल्टीप्लाई करूंगा बिल्कुल 18/5। आपको पता है ये किसी चीज से डिवाइड किया है तो ऊपर जाके रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर्स पर सेकंड एंड मीटर पर आवर इनटू किलोमीटर पर आवर। हाँ प्रीत बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है। देन तो ये हमारा कन्वर्जन होता है, शुड नॉट बी प्रॉब्लम। इसके ऊपर एक दो मैं अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछ लेता हूं।
If I travel 5 meters per second, I reach my destination 5 minutes late. If I travel 3 meters per second, I reach my destination 2 minutes early. What is the distance that I travel? ओ तो ओहो उल्टा कर दिया मैंने।
नहीं बनी बात? नीचे आना। एक बार सामने जाइए, वो अपना ग्लास चेंज करा दे इसका, जो भी लेगा सो बता देना मेरा है। वो सामने होगा ना, वो बता देना मेरा है, पंकज सर का चेंज कर दो। उतार, मतलब थोड़ा सा खराब हो गया तो उन्हें उतारना है। जो भी होगा पूछ लेना, वो इतने का आएगा, 100-200, ज्यादा है, कॉस्टली थोड़ा ना होगा, 100-200 होगा। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है ये देखो। जब मैं 5 की स्पीड से चलता हूं तो मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही बात है। डिस्टेंस मुझे निकालना है। अगर मेरे को डिस्टेंस डी है, स्पीड मेरी 5 है, तो जो टाइम है वो मेरा t-3 लगता है, मान सकते हैं नॉर्मल टाइम। ये इक्वेशन समझ में आ रही है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 5, स्पीड इज 5, so distance is d, speed is 5, time is t-5. So if I am traveling at 3 meters per second, तो distance I am taking 2 minutes more, लेट हो रहा हूं। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, माइनस 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 कट जाएगा। -7 इज इक्वल टू 3/5 माइनस, सॉरी, माइनस d/3, d/5 माइनस d/3, तो इसको माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो कैन आई से 2d/15 इज इक्वल टू 7, है ना? तो d की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 7/2, कितना बनेगा? 105 अपॉन 2, कितना बन जाएगा? 52.5 मीटर्स। है ना बढ़िया क्वेश्चन? लेकिन अगर डी में ले जाओगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ना ना, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया कहाँ फंसे हो, बट ये ऐसे करोगे ना। अब इसमें क्या है, कई बार यहाँ पे लेट ना होके बोलता, मान लो बोलता कि आई रीच्ड ऑन टाइम, तो बस सिर्फ टी हो जाता। समझ में आ रहा? अगर वो बोलता रीच्ड ऑन टाइम, तो अपन टी में ना जोड़ते ना घटाते, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अगर ये भी कह सकता था एक में 5 मिनट लेट, एक में 2 मिनट लेट, तो दोनों में प्लस प्लस हो जाता। ये कहता है 1 मिनट में 5 में अर्ली, एक में 2 मिनट अर्ली, तो दोनों में माइनस माइनस हो जाता। ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, दोनों में लेट, दोनों में जल्दी, एक में लेट, एक में जल्दी, ये सारी पॉसिबिलिटीज है। हाँ जी प्रीत, समझ में आया? यस सर। ओके चलो, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन ये बन सकता है कि लेटर से मैंने कहा ये 100 किलोमीटर है, ये 200 किलोमीटर है, ये मान लेते हैं 300 किलोमीटर है, और ये मान लेते हैं 500 किलोमीटर है। यहां से यहां की आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे आपकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी मान लो पॉइंट ए से बी पे आप चले 100 किलोमीटर, यू ट्रेवल्ड एट एवरेज स्पीड ऑफ 50, फ्रॉम बी टू सी यू ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20, फ्रॉम सी टू डी you traveled at an average speed of 60, and from D to let's say E you traveled at a speed of 25. What is the average speed of the entire journey? कैसे करोगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 500 डिवाइड बाय टाइम। टाइम कैसे आएगा? 50 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 50, ये तो स्पीड है।
ये स्पीड का एवरेज निकाल देंगे कि 50 + 20 + 60 / 25 डिवाइड बाय 4। हाँ, अरे की अलग अलग, वेरी गुड। यहाँ से T1 आएगा, T1 की वैल्यू बनेगी 100/50, तो ये बनेगा 100/50 प्लस यहाँ से क्या आएगा T2, क्या बनेगा 200/20, यानी 200/20 प्लस यहाँ पे क्या आएगा T3, क्या होएगा 300/60, तो 300/60, फिर यहाँ T4 आएगा, ये क्या बनेगा 500/25, यानी ये 500/25। आप ऐसे मत कर देना, टोटल सम एवरेज को एवरेज कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो तीनों की जगह अलग अलग टाइम है, उसको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। तो अगर अपन देखें 100 + 200 300, 300 600, 600 + 5 इज 1100, 100/50 2, 200/20 10, 300/60 5, एंड दिस इज 20, तो ये मेरा बनेगा 1100/37, जो भी आएगा हमारा km/h, ये मेरा आंसर बनेगा। हाँ प्रीत, बन रही बात? Yes, sir. ठीक है, सो फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? शुड नॉट बी प्रॉब्लम। नाउ let me ask you this question so that we are clear about this aspect also. Let us say there is a point A, there is a point B. You travel from A to B, let's say at 40 km/h, and you travel B to A, let us say at 50 km/h, right? This is the way you are traveling. What is the average speed of the entire journey? मान लो हिसार से आप दिल्ली गए 40 km/h, वहां से वापस आए 50 km/h, तो ये एंटायर जर्नी की हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, Sir, 45. नहीं बेटा, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है वैसे तो। 45 आपने कैसे किया होगा, आपने ऐसे किया होगा 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2। ये पता है आपने क्या कर दिया, आपने एवरेज ऑफ एवरेज निकाल दिया। आपने क्या किया, एवरेज ऑफ एवरेज निकाल दिया। हमें क्या निकालना था, हमें निकाला एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो यहाँ डिस्टेंस दिया नहीं है तो अज्यूम करना पड़ेगा, है ना? ट्राई करो। यस, बिल्कुल सही। आंसर इज 400/9। कैसे करोगे, मान लेते हैं आप यहां से गए, डिस्टेंस दी है, हमारा फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया d + d, टाइम जाने का टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाने का टाइम ये है और आने का टाइम क्या है d/50, और हमारा क्या बनेगा T1 + T2, तो ये बनेगा d + d होल डिवाइडेड बाय d/40 + d/50। सो यू कैन टेक 2d कॉमन, you can take d here, 1/40 + 1/50, d से d कटेगा। now you see 2, नीचे क्या बन सकता है 50 + 40 डिवाइडेड बाय 40 × 50, तो ये बन जाएगा 2 × 40 × 50 डिवाइडेड बाय 90। ये 0 0 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा 10, 400/9। वी नो 1/9 कितना परसेंट होता है, 11.11, तो इंटू 4 करेंगे तो 44.44 km/h, ये आंसर आएगा। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है
जनरली किताब में ऐसे फॉर्मूला दिया जाता है कि मान लेते हैं आप किसी पॉइंट ए से बी पे गए, ठीक है, एक्स की स्पीड से गए और वाई की स्पीड से मान लेते हैं आप वापस आए, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. वंस अगेन टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी, टाइम इज डी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन वाई. तो ये बन जाएगा 2d d इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई. डी से डी खत्म होगा, 2xy अपॉन में x प्लस वाई. दिस इज द एवरेज स्पीड. ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना जितनी दूरी गए हो उतनी ही दूरी आना पड़ेगा. अगर हमें डिस्टेंस अलग अलग दिया है तो हमारे डी डी कैंसिल नहीं होगा ऊपर नीचे, तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, मैं इससे एक थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन पूछ लेता हूं. ऑफ कोर्स क्योंकि आपने ये कर लिया है तो आई एम श्योर ये कर पाएंगे. मान लेते हैं इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क? इट मींस all the three sides are equal. From A to B you are traveling at x kilometer per hour, from B to C you are traveling y kilometer per hour, C to A you are traveling z kilometer per hour, right? Now the question is, what is the average speed of the entire journey? A से B की स्पीड x है, B से C की y है और C से A की z है. किलोमीटर पर आवर मान लो. फॉर्मूला लगा लो, कोई नहीं, डिराइव कर लो, प्रॉपर कर लो. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकाल के देखो क्या बनता है. देखो कुछ नहीं करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंस डी मान सकते हैं. टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी प्लस डी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. यहाँ से यहाँ T1 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ T2 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ T3 मान लेते हैं.
बताया तो था मैंने अभी। T1 की वैल्यू d अपॉन एक्स, डी अपॉन वाई एंड डी अपॉन जेड। अपन क्या कर सकते हैं, डी कॉमन निकाल के 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, डी से डी खत्म हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 3axyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx बनेगा। हाँ, ये कर दिया xy। अब एलसीएम जब लेगा ध्यान से देख, xyz बनेगा प्रोडक्ट, xyz को x से डिवाइड करेगा yz आएगा, y से डिवाइड करेगा xz आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा प्रीत, मैं ये वाली बात सिर्फ आईपीएम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तुम मत चिंता करना, ठीक है? ये एक और क्वेश्चन इनको दे रहा हूँ, ये सिर्फ इनके लिए है। स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ ए है, यहाँ से यहाँ बी है, यहाँ से यहाँ सी है, यहाँ से यहाँ डी है, स्क्वायर है, ध्यान रखना। एवरेज स्पीड क्या है इसकी? वेरी गुड, एक एक छोड़ना है, तो ये अपना बनेगा 4ABCD। नीचे ABC ले लो, D छोड़ दो, ABD ले लो, C छोड़ दो, ACD B छोड़ दो, BCD A छोड़ दो, बात वही बनेगी। अगर पेंटागन होता तो 5ABCDE एक एक छोड़ते हुए बचे हुए वैल्यू लिख देते। ठीक है, इतना मुश्किल आना नहीं चाहिए, बट देन इन केस इफ इट कम्स यू नो एवरेज स्पीड। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा यहां तक? नो, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस ऑन ट्रेन्स। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे ट्रेन्स पे आते हैं। मान लेते हैं मेरी एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक पोल है थोड़ी दूर पे, इसकी हाइट 50 मीटर है, ये लेंथ है, स्पीड ऑफ द ट्रेन है मान लेते हैं 5 मीटर्स पर सेकंड। बताओ ये ट्रेन इस पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी? पोल की हाइट है क्या? सोचो, कुछ हो सकता है? कोई यूज नहीं, ऐसे ही दिया हुआ है कंफ्यूजन करने के लिए। अच्छा ये बताओ, इसके बाद से कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ गैप है, इस बात से फर्क पड़ेगा? क्रॉस क्यों नहीं करेगा मतलब? नहीं तो ये डिस्टेंस पता नहीं है, पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बस वही लेना है, लेंथ ही डिस्टेंस है। ये इसलिए आपको बस समझाना चाहता हूँ कि कहाँ फर्क पड़ेगा और कहाँ नहीं फर्क पड़ेगा, ध्यान देना। मैंने कहा जैसे तुम फाटक बाइक पे जाते हो, मैं फाटक पे खड़े हो मान लो, ठीक है? मैंने कहा रवि ना तुम्हारे सामने से ट्रेन जाएगी, तुम खड़े हो ऐसे, पोल समझ लो तुम हो, तुम्हारे आगे से ट्रेन जाएगी, तुम मुझे ये बताना कि तुम्हें ट्रेन कितनी देर में क्रॉस किया। ये सवाल तो हो ही सकता है। नहीं मतलब आप खड़े हो मान लो, ट्रेन आएगी, मैंने कहा ये बताना भाई टाइम बताना मुझे कि आपको ट्रेन ने कितनी देर में क्रॉस किया, कैसे पता लगाओगे? बिल्कुल सही, टाइम नोट करोगे। हाँ यही क्वेश्चन है असली वाला। मैंने क्या पूछा, ट्रेन ने आपको कितनी देर में क्रॉस किया। अब आप घड़ी लेके तो खड़े हो गए, अब हमें पता तो नहीं ट्रेन कहाँ पे है, आपका टाइम कब चालू करोगे? ट्रेन आपको कब क्रॉस करना शुरू करेगी? जब इंजन आपके, क्रॉसिंग कब स्टार्ट होगी? जब इंजन आपके नाक के सामने आएगी। और कब खत्म होएगी? जब गार्ड का डिब्बा निकल जाएगा। यानी जब इंजन यहाँ पे आया तब आपने टाइम चालू किया, और फिर इंजन यहाँ पहुंच गया और गार्ड यहाँ आ गया तब आपने टाइम बंद कर दिया, यही बात है। तो आपने कितनी देर तक का टाइम नोट किया? इंजन से गार्ड तक का इतना टाइम नोट किया, और ये तो इंजन से गार्ड के बीच का जो लेंथ है वही तो डिस्टेंस है। भाई कितना डिस्टेंस नोट किया आपने इंजन से गार्ड तक का, विच इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द ट्रेन, एंड देयरफॉर डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज द लेंथ। और टाइम कब चालू होगा? जब ट्रेन आपके सामने आएगी, कितनी दूर है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कितनी टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी आपको? 200/5।
40 सेकेंड। समझ में आ रहा है? इसका हाइट का भी कोई लेना देना नहीं। ये लेना देना तब होता, मान लो मैंने कहा इस वक्त 1 बज रहे हैं, बताओ कितने बजे ट्रेन क्रॉस करेगी। अब इसका लेना देना है, मान ले 100 मीटर होती, तो जब ट्रेन यहाँ आएगी, थोड़ा आगे आएगी, टाइम तो ये घड़ी तो नहीं रुक जाएगी, उसमें तो अपनी चॉइस थी घड़ी कब स्टार्ट करनी, इसमें तो घड़ी चालू है। तो अगर आपको समय दे दिया गया, अब आपको ये डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा और ये डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। अब ये बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो स्पीड है वो अपान ये 5 है, तो 300 अपॉन 5, 60। प्रीत ये समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने? यस सर। तुम दोनों को आया समझ में? पॉइंट ऑफ टाइम घड़ी वाला पहले देखा तो लेना पड़ेगा, नहीं तो क्रॉसिंग के लिए अपने को लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा मान लेते हैं ये हमारी जो ट्रेन थी और ये जो पोल था, तूफान आया और ये पोल नीचे गिर गया, ये पोल अपना नीचे गिर गया बगल में, पटरी के बगल में। इसकी मीटर 50 मीटर लेंथ थी और ट्रेन हमारी 200 मीटर की लेंथ थी, और हमको पता है स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, अब बताओ ये ट्रेन इस पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी? कैसे? डिस्टेंस अब आप लोगे 200 प्लस 50, क्योंकि आपकी चालू होगा जब इंजन यहाँ है और खत्म होगा जब इंजन यहाँ है और गार्ड यहाँ पे है। यानी यहाँ टाइम चालू शुरू किया, यहाँ खत्म किया, इसका मतलब है ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, स्पीड कितनी हो गई 5, तो कितना बनेगा 250 अपॉन 5, आंसर कितना आ जाएगा 50 सेकेंड। ठीक है, अब इस गिरे हुए पोल की जगह एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? देयर इज अ मूविंग ट्रेन, इट हैज टू क्रॉस अ ब्रिज, the length of the train is 200 meters, the length of the bridge is 150 meter, in what time will the train cross the bridge if the speed of the train is 2 meters per second? कोई फर्क पड़ेगा? इस लेंथ की जगह ब्रिज हो जाएगा तो नहीं, टनल हो जाएगा तो ठीक है, अंडरपास हो जाएगा तो कुछ भी होएगा, रुकी हुई ट्रेन होगी तो हाँ, तो कोई फर्क पड़ेगा, यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? एक ट्रेन ये है 200 मीटर लंबी, एक ट्रेन है यहाँ खड़ी है, बस चल नहीं रही है, ये ट्रेन 5 मीटर पर, ये ट्रेन इसको कितनी देर में क्रॉस करेगी? अरे ये तो चल रही है, तो लेंथ की डिस्टेंस कितना मानोगे? 200 प्लस अपॉन में 5, तो 500 अपॉन में 5 विच इज 10 सेकेंड्स, 500 है सॉरी, हाँ 100 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, स्टेशनरी। लेकिन अगर ये ट्रेन भी चलती हुई तो प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? अगर दोनों ट्रेनें चल रही हैं तो हमको दिक्कत है, फिर हमारा कैलकुलेशन पूरा बदल जाएगा। यहां तक तो क्लियर है, एक ट्रेन चल रही है, उसने चाहे ब्रिज क्रॉस करना हो, चाहे प्लेटफॉर्म क्रॉस करना हो, चाहे टनल क्रॉस करना हो, चाहे रुकी हुई ट्रेन क्रॉस करनी हो, दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दो ट्रेन चल रही है और दोनों को क्रॉस करना है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है दो ट्रेन ऐसे चल रही है इसको ओवरटेक करना हो। जब ऐसा सा क्वेश्चन आता है जहां पे दो से ज्यादा मूविंग बॉडी हो जाए, दो या मूविंग बॉडी हो जाए, वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? इट इज स्पीड ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। तो इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं आप हिसार में हो, आपका फ्रेंड फरीदाबाद में, दोनों के बीच में 200 किलोमीटर का गैप है, आप मिलना चाहते हो, आप यहां से चले, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपका फ्रेंड चला 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दोनों मिलके चल रहे हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप दोनों कहाँ मिलोगे, हिसार से कितनी दूरी पे या फरीदाबाद से कितनी दूरी पे, एक क्वेश्चन ये, और कितनी देर के बाद मिलोगे, दूसरा क्वेश्चन ये। अब हम इसको मैकेनिकली करके देखते हैं, फिजिकली, और फिर देखते हैं फॉर्मूले से कैसे होगा। 1 घंटे बाद आप 30 किलोमीटर आगे आ जाओगे, आपका दोस्त 20 किलोमीटर आगे आ जाएगा, फिर आप 1 घंटे में 30 किलोमीटर आगे आ जाओगे, वो 20 किलोमीटर आगे आ जाएगा। 2 घंटे हो गए, फिर आप 30 किलोमीटर आगे आ जाओगे, 90, वो 20 किलोमीटर आगे आ जाएगा, 60, 150 हो गया। फिर आप 30 किलोमीटर आगे आ जाओगे और वो 20 किलोमीटर आगे आ जाएगा, यहाँ मुलाकात हो जाएगी। तो आपने 1, 2, 3, 4 बार 30 चले, तो यानी 4 घंटे लगे आपको पहुंचने में। और आप कितनी दूरी पे हो? 120 किलोमीटर की दूरी पे हिसार से। वो आपका फ्रेंड फरीदाबाद से कितनी दूरी के है?
80 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? यानी आप ऐसे 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 चल के आपकी मुलाकात हो गई। बट ऑब्वियसली हम एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये चल रहा है ये चल रहा है। इसका एक सिंपल तरीका होता है। सिंपल तरीका क्या होता है? सिंपल तरीका ये होता है कि हम ये कहते हैं, आप हिसार में हो फरीदाबाद, आप 20 की स्पीड से चल रहे हो, आप 30 की स्पीड, आप इधर ये इधर, ठीक है। आप सामने वाले को बोल रहे हो भाई तू मत चल, तू खड़ा रह, तू, हाँ मैं तेरा काम भी मैं कर दूंगा, तो तेरा काम भी क्योंकि दोनों मिलके कर रहे हो तो तू मत कर, तो इसका मतलब किसी को तो करना पड़ेगा, तो तुम कर दोगे। तो तुमने क्या की स्पीड ऐड कर दी। इस स्पीड को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ये एक हाइपोथेटिकल स्पीड है, एक्चुअली तो वो भी चल रहा है और आप भी चल रहे हो, लेकिन आपने क्या कहा कि कोई बात नहीं तू रुक जा, मैं अकेले चलता हूं, लेकिन मेरे को तेरा भी काम करना पड़ेगा, तो मुझे ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा, तो मैं किस स्पीड से चलूंगा 50, इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। अब हमें पता है दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना था 200, हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो कोई फर्क पड़ा नहीं, 200, स्पीड कितनी हो गई 50, टाइम कितना हो गया टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 200/50, यानी कि 4 घंटे के बाद मुलाकात हो जाएगी, ठीक। बट प्रैक्टिकल बात तो ये है कि वो भी चल रहा है और आप भी चल रहे हो, तो आप एक्चुअली जो स्पीड से चल रहे हो 30 की स्पीड से चल रहे हो, तो जो डिस्टेंस आप कवर करोगे दिस इज डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, योर स्पीड इज 30 एंड टाइम इज 4, सो यू आर ट्रैवलिंग 120 किलोमीटर्स। सिमिलरली अगर आपके फ्रेंड की बात करोगे तो वो भी स्पीड से चल रहा है, वो भी 4 घंटे चल रहा है, तो उसकी स्पीड 20 है और वो 4 की स्पीड से चल रहा है, तो वो 80 किलोमीटर चलेगा। सो यू आर गोइंग टू मीट फ्रॉम 120 kilometer from Hisar, or you may want to say 80 kilometers from Faridabad. So you have to understand one thing, whenever two bodies are moving in the opposite direction, the speeds will always be added. ठीक है, इस तरीके से स्पीड हमेशा जुड़ेगी। ठीक है प्रीत, समझ में आया यहां तक? Yes, ma'am. Yes, sir. ओके, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर हम सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या होगा। नाउ यस, नॉर्मली दिस इज द क्वेश्चन इन पुलिस एंड थीफ वाला क्वेश्चन है। मान लेते हैं आप पुलिस हो, ये थीफ है, आपने एक थीफ को देखा 100 मीटर की दूरी पे और आप इसको चेज करने लगे और ये भी भागने लगा, ठीक है। और आप मान लेते हैं 50 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से थीफ भाग रहा है, आप उसको 75 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से चेज कर रहे हो, तब सिचुएशन बनेगी क्या? एक्चुअल सिचुएशन क्या बनेगी? सिचुएशन ये बनेगी कि आप यहाँ पे हो पुलिस और थीफ यहाँ पे है, दोनों के बीच में 100 है, ये 50 से भाग रहा है और तुम 75 से, 100 का गैप है। अगले 1 सेकंड में ये 50 मीटर आगे आएगा, यानी 150 पे आ जाएगा, और आप 75 पे आ जाओगे, यानी आप 75 पे आ जाओगे, गैप कम हो गया। फिर अगले 1 सेकंड में ये 50 और चल के 200 पे आ जाएगा, और अगले 1 सेकंड में आप 50 और चल के 150 पे आ जाओगे। फिर अगले 1 सेकंड में ये चल के 250 पे आ जाएगा, और ये चल के 225 पे आ जाएगा। फिर अगले 1 सेकंड में ये चल के 300 पे पहुंचेगा, और आप 75 उसको 300 पे पकड़ लोगे। तो कितना टाइम हो गया? यहां से यहां 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, कितने लग गए? 2 3 4, 4 सेकंड में आपने उसको पकड़ लिया। अब ऐसे करना हमेशा कम्बरसम प्रोसेस है, तो अब इसका जो शॉर्टकट है या जो वन डायरेक्शन में, उसको हम कैसे कर सकते हैं? उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मेरे पास पुलिस है, ये थीफ है, ये 50 की स्पीड से, ये 75 की स्पीड से, और 200 का गैप है। आप इस चोर को बोलते हो भाई ऐसा है, देख मैं तेरे को पकड़ तो लूंगा ही, तो तू क्यों भाग रहा है? तो तू मत भाग। समझ में आ रहा है? तो तू मत भाग। अब चूंकि तू नहीं भाग रहा है, मैं इसकी एवज में मैं तेरे को धीरे धीरे पकड़ूंगा, और कितनी धीरे पकड़ूंगा? 50 माइनस, तूने अपनी स्पीड 50 माइनस कर दी, कम कर दी, तो मैं भी कम कर देता हूं, यानी मेरी इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई? 25। अब चोर तो यहीं खड़ा है, डिस्टेंस हमें हमारा फिक्स हो गया, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, स्पीड कितनी है? 25। हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 100/25 विच इज 4 सेकेंड्स। सीधा आ गया। अब प्रैक्टिकली चोर भी भाग रहा है और आप भी भाग रहे हो। अब अगर आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस, तो आपकी स्पीड कितनी है? 75, टाइम कितना ले रहे हो? 4, यानी कितने 300 मीटर भागोगे आप। और अगर हम थीफ की बात करें तो उसकी स्पीड 5, वो 4 की स्पीड से वो 200 भागेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी वो 100 मीटर आगे खड़ा है, तो पुलिस को वो जो डिस्टेंस आगे खड़ा है वो भी कवर करना है, प्लस वो जो आगे भाग रहा है वो भी कवर। तो कैसे हो रहा है? ये गैप है, ऐसे 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 जाके वो उसको पकड़ लेगा। सो इन ऑपोजिट डायरेक्शन द स्पीड इज एडेड, इन द सेम डायरेक्शन द स्पीड इज सबट्रैक्टेड।
सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगी। ट्रेन्स के अंदर भी यही क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि मान लेते हैं एक ट्रेन ऐसे चल रही है और एक ट्रेन ऐसे चल रही है, इसकी लेंथ 200 मीटर है, इसकी लेंथ 300 मीटर है। ये मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल, ये तो ऐसे इस तरीके से चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। कितनी देर में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, कैसे निकालोगे? डिस्टेंस हमेशा तो सम बनता है, ये तो हमने देख ही लिया था। और स्पीड रिलेटिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 3 + 2 बनेगी 5। तो टाइम कितना बनेगा इनका रेशियो 5/5, ये 100 सेकेंड्स। ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, ये इसके पीछे पीछे जा रही है। तो अब ये ट्रेन मतलब ऐसे ऐसे दो ट्रेन है, ऐसे ये इस मतलब पीछे, तो ये इसको चलते 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 कहीं ओवरटेक कर लेगी। तो क्वेश्चन ये है कितनी देर में ओवरटेक करेगी और कहां पे ओवरटेक करेगी। क्या करोगे, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? डिस्टेंस तो यही मानना पड़ेगा। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? कितना टाइम लगेगा? 500 सेकेंड। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, हमेशा ही ऐड होगा दोनों। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड्स ऐड हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन में स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स का, वो करवाता हूं और फिर एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है, मान लेते हैं पॉन्ड है, रुका हुआ पानी है, उसको हम बोलते हैं स्टिल वाटर। एक होता है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है बहता हुआ पानी, जिस डायरेक्शन में बहता है पानी उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और उसके ऑपोजिट साइड में बोलते हैं, ठीक है, नीचे जो बहता है उसको डाउन स्ट्रीम और जो ऊपर की तरफ बहता है उसको अपस्ट्रीम। ठीक है, देन अगर एक बोट है, मान लेते हैं मोटर बोट है, पावर बोट है, जैसे भी है, अगर आप रुके हुए पानी में इसको चलाते हो x किलोमीटर/आवर की स्पीड से, तो इसको x किलोमीटर/आवर की स्पीड, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, और जिस स्पीड से पानी बह रही है, मान लो पानी बह रहा है y किलोमीटर/आवर की स्पीड से, तो हम y को बोलते हैं y इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। y क्या है मेरी? स्पीड ऑफ। चलेगा? अब मान लेते हैं ये मेरा पास बहता हुआ पानी है y की स्पीड से, और मैंने इसके ऊपर नाव रख दी, बस नहीं चला रहा मैं, तो नाव कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी? y की स्पीड से। लेकिन अगर मैं, पानी इधर बह रहा है और नाव को भी इधर चलाऊं x किलोमीटर/आवर की स्पीड से, तो अगर आप बाहर खड़े होके देखोगे तो आपको स्पीड कैसी लग रही है, ज्यादा या कम? लेकिन तो इसका मतलब स्पीड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी? तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम। लेकिन एक बात सोचो, दोनों सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो रही है। अभी अभी अपन ने पढ़ा था सेम डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी, क्यों? अभी पढ़ा था ना, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड में माइनस कर रहे थे, इसमें जोड़ क्यों रहे? उसमें ओवरटेक कर रहे थे, जमीन नहीं चल रही थी। इसमें क्या, धरती उसको हेल्प कर रही है, उसको धक्का लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि वहां तो उल्टा था, यहाँ पे कैसे हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप मान लेते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो आपकी जो वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी अपस्ट्रीम, उसको बोलते हैं x माइनस वाई। क्योंकि अगर आप 2 किलोमीटर ऊपर चलोगे, आधा किलोमीटर नीचे आओगे, तो इफेक्टिवली 1.5 किलोमीटर चल पाओगे। यहां से एक फॉर्मूला भी किताबों में आपको दिया जाएगा, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू वी डी प्लस वी अप। एक्स की वैल्यू बन जाएगी डिवाइड बाई 2, और y की वैल्यू बनेगी वी डी माइनस वी अप अपॉन 2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी, बट मैं नहीं चाहता याद कर रखो, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए नीचे जाने की जो स्पीड है वी डी, मतलब एक्स प्लस वाई इज वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम और एक्स माइनस वाई इज वेलोसिटी अपस्ट्रीम। इसके अलावा जो भी इसके अंदर फॉर्मूले लगेंगे वो वही लगेंगे जो हमने पढ़े हैं, बाकी कोई फॉर्मूला डिफरेंट नहीं लगेगा। प्रीत, समझ में आया यहां तक? यस सर। ठीक है, शीट है आपके, नोटबुक है आपके पास?
No, sir. नहीं है, चलो फिर मैं बोलता हूँ, एक बार वो कुछ फोटो खींच के भेजेंगे, ठीक है, ग्रुप में। ठीक है, विल सॉल्व सम एग्जांपल्स, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर, फिर वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक सेकंड।